Good morning, students. In this video, you will learn about the second chapter of your computer, which is Advanced Feature of Windows 7. So इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कि the advanced feature of the Windows 7. So Windows 7 क्या होता है? Windows 7 is a operating system which help user to interact with the machine or computer. Okay? So इस वीडियो में हम लोग Windows 7 के बारे में और बाकी सारी चीजें जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. So now first you need to understand about the operating system. So what is the mean of operating system? So I think you are very well known about the operating system, but again I am explaining the definition of the operating system. So what is the mean of operating system and what operating system is do? Okay, so operating system help to user to interact with the user with machine. Okay, it help user to interact with machine. Okay, so ये क्या करता है, आप जो भी टास्क मशीन मतलब कंप्यूटर या फिर जो अभी आप लोग गैजेट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फिर और भी कोई मशीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो आपके थ्रू जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं पर्टिकुलर मशीन को, ठीक है, तो वो सारी चीजें उसको कैसे समझ में आ रही है, तो ये जो बीच में आपके और मशीन के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यूजर टू कम्युनिकेट विद द मशीन. ओके, सो नाउ बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद में हम लोग अब देखते हैं कि इसके बारे में चैप्टर में है क्या. ओके, सो नाउ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. So Microsoft, co-founded by the Bill Gates, okay, so introduced an operating environment named Windows 1.0 on the November 20, 1985. Okay, so first जो operating system आया था वो कब आया था आपका 1985 November 20 के अंदर. Okay, so it was an operating system with the graphical user interface. Okay, so this is the first graphical user interface provided by the Microsoft. Okay, so over the year, many versions of Windows were released. Windows 7 is one of the most popular version of the Microsoft Windows operating system, along with the Linux and Mac OS. Okay, so हुआ क्या कि फर्स्ट में जब आपके 1985 में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया अपना विंडो 1. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, फिर उसके बाद में आया आपका 1992 के अंदर विंडो 3.1, फिर उसके बाद में आया आपका 95 में विंडोज 95, फिर 2001 में आया आपका विंडो एक्सपी. तो एक्सपी आप लोगों ने शायद अगर कहीं देखा हो, ठीक है, अभी भी कई गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर एक्सपी यूज ले रहे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद में आता है आपका विंडो विस्टा, ठीक है, 2006 के अंदर विंडो विस्टा आया था. देन Microsoft released their popular version of Micro operating system, which is Windows 7. Okay, so till now we are using that Windows 7 also. ओके, बट अभी कुछ लैपटॉप्स या फिर आपके पास में विंडो 10 होगा, ठीक है. उसके बाद में आया आपका विंडो 7 आया था आपका 2009 में, फिर उसके बाद में आया आपका विंडो 8 2012 में, और फिर 2015 में रिलीज हुआ विंडो 10. ओके, so now these days you are using maybe Windows 7 or maybe Windows 10. Okay, so both are the most popular operating system provided by the Microsoft company. Okay, so in this chapter we will learn about the Microsoft Windows 7. Okay, but साथ के साथ में मैं आपको विंडो 10 के फीचर्स भी बताता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग विंडो 10 यूज कर रहे हैं और कुछ लोग विंडो 7 ही यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो चैप्टर में हमारे विंडो 7 है, बट मैं आपको साथ साथ में उसके विंडो 10 के फीचर भी बताता रहूंगा. ओके, सो हियर आई एम यूजिंग the operating system which is name is Windows 10. So this is the operating system Windows 10. Okay, ये इसका बेसिक व्यू होता है. यहाँ से आपका ये स्टार्ट बटन है, ठीक है, इस तरीके से मेन्यू बार यहाँ पे खुलता है. ओके, बट Windows 7 के अंदर कुछ अलग सिस्टम होता है, वो हम आपको बताने वाला हूँ. Okay, so here now we will continue with this chapter. Okay, so you have already read about the many features of Windows 7
in your earlier classes. So let us quickly recall some important ones. Okay, so first one हम देखेंगे कि कुछ इसके quick features. Okay, so first one है desktop. So what is the mean of desktop? The first screen that you see once the OS get located is the desktop. Okay, so desktop contain the start button, taskbar, and few graphical images called icon. Okay, so you can double click on that icon using the mouse to access the program and folder. So add new paragraph here. Okay, so here you can see the desktop of your operating system if you are using Windows 7. Okay, so this is the graphic view of Windows 7 desktop. Okay, so ये अगर आप लोग Windows 7 यूज कर रहे हैं आपके कंप्यूटर में तो आपको ऐसा कुछ व्यू ऐसा दिखता होगा. ठीक है, माई कंप्यूटर यहाँ पे ऐसा माई कंप्यूटर की जगह यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा होगा. ठीक है, रिसाइकल बिन होता है और यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हो सकते हैं जो भी आप लोकेट करते हैं यहाँ पे. ओके, आपका टास्क बार ये यहाँ पे नीचे होता है, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं. जो आपका वॉलपेपर है आप लोग चेंज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट इस तरीके से वॉलपेपर रहता है या फिर इसको चेंज भी होता है ये. ठीक है, देखते हैं. और एक और व्यू है हमारे पास में, दिस वन. ओके, सो दिस इज द व्यू ऑफ डेस्कटॉप ऑफ विंडो 7. ओके, इफ यू आर क्लिकिंग ऑन दैट स्टार बटन तो यहाँ पे ये मेन्यू बार इस तरीके से खुल जाता है. स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से तो ये सारे आपके जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे वो सारे इस पे यहाँ पे लिस्ट आ जाती है. ठीक है, यहाँ लास्ट में आपके एंड में आपके यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे आपका टाइम डेट होता है और बाकी सारे शॉर्टकट फंक्शंस होते हैं. सो दिस इज द डेस्कटॉप व्यू ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो नाउ we will talk about the next, which is computer. Okay, so this icon allow you to open any drive and move to any folder. Okay, when you double click on the computer icon on the desktop, it opens the window explorer showing all the internal and removable drives, okay, in your computer. So you can also create a new folder and copy, move, rename or delete files and the folder from the window. Okay, so my computer कौन सा feature होता है आपका? So this one feature. Okay, so this computer, ये जो आप लोग आइकन देखते हैं, ठीक है, ये वाला आइकन कंप्यूटर वाला, ठीक है, ये होता है आपका कंप्यूटर. ओके, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्लियरली. ओके, सो इफ यू आर क्लिकिंग ऑन डबल क्लिक ऑन दिस बटन, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये पूरा जो भी इसके अंदर ड्राइव्स होंगी आपकी वो सारी एक्सप्लोर कर देगा. ये लोकल ड्राइव्स को एक्सप्लोर कर देगा और रिमूवेबल ड्राइव्स को भी. रिमूवेबल ड्राइव्स कौन सी होती है आपकी, जैसे आप लोग प्लग इन करते हैं पेन ड्राइव्स. ओके, सो पेन ड्राइव आप प्लग इन कर रहे हो या फिर आप लोग सीडी या डीवीडी इसमें प्लग इन कर रहे हो. ठीक है, तो ये सारी आपकी कौन सी होती है, रिमूवेबल ड्राइव्स होती है. ओके, सो अगर आपको उसको एक्सप्लोर करना है तो यू नीड टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर. ओके, डबल क्लिक करेंगे आप लोग लेफ्ट यहाँ पे और वो एक्सप्लोर हो जाएगा. सो दिस इज द फीचर ऑफ कंप्यूटर बाय विंडो 7. अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडो 10 में कैसा होता है ये सारी चीजें. ओके, सो हियर we have this PC function. Okay, so this PC हमारे पास में यहाँ पे आइकन होगा कंप्यूटर के रिप्लेसमेंट में if you are using the window 10. So here I am using window 10. Okay, तो मैं यहाँ पे window 10 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे होता है आपका ये this PC. Okay, so यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, सेम एज इट इज आपको आपके विंडो 7 में भी करना है कि अगर वहाँ कंप्यूटर है तो डबल क्लिक करेंगे. So this is how you can explore your computer or this PC function. ओके, सो यहाँ पे आपके सारे ड्राइव्स आ जाएंगी. ठीक है, सी ड्राइव्स, डी ड्राइव्स, ई ड्राइव्स एंड जी ड्राइव्स. ओके, सो हियर यू कैन सी ऑल द ड्राइव्स. ओके, आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कम भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन पे. ओके, अगर आप लोग प्लग इन कर रहे हैं पेन ड्राइव तो पेन ड्राइव की भी इंफॉर्मेशन आपके यहीं पे आ जाएगी. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन व्यू द computer or this PC function in your PC. Okay, so keep in mind में देख लेते हैं क्या देख रखा है कि press win key, okay, and plus में उसके E from the keyboard to open the window explorer and computer. Okay, so if you are pressing window key with the E key with the विंडो की. ओके, सो अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि विंडो की होती क्या है. तो आप लोगों में से कई लोगों को विंडो की नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि विंडो की होता क्या है. ओके, सो
ये होता है आपका विंडो की। आपके कीबोर्ड में ऑल्ट और ये फंक्शन की के पास में एक इस तरीके से की होगा जिसका व्यू ये होता है, देखिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ विंडो की। ओके, ये वाला जो की है आपका। ओके, सो इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप और इफ यू आर यूजिंग डेस्कटॉप, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो की दिखेगा वो आपका क्या होता है, विंडो की बोलते हैं। ठीक है, तो आपको करना है क्या है, विंडो की प्रेस करनी है एक फिंगर से, और विदाउट रिलीजिंग दैट विंडो की यू नीड टू प्रेस ई। ओके, तो सबसे पहले एक कीज एक फिंगर से क्या करना है, आपको विंडो की को प्रेस करके रखना है। ओके, उसके और फिंगर को हटाना नहीं है, फिर उसके साथ में क्या करना है, दूसरी फिंगर से आपको क्या करना है, ई को प्रेस करना है। तो जैसे ही आप लोग ई को प्रेस करोगे, इस तरीके से आपका ये विंडो एक्सप्लोरर या फिर जो माई कंप्यूटर वाला जो फंक्शन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्टकट की टू ओपन द कंप्यूटर और विंडो एक्सप्लोरर। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, विंडो की को प्रेस करके रखना है, फिर उसके बाद में ई को प्रेस करना है। ठीक है, और जैसे ही विंडो की खुल जाए और फिर अपने फिंगर्स को हटा लेना है। सो दिस इज हाउ यू कैन explore the window or window your computer, okay, with the help of keyboard। okay, और अगर आपको माउस से करना है तो you need to just डबल क्लिक on that particular icon और फिर वो ओपन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, रिसाइकल बिन। ओके, सो व्हाट इज द मीन ऑफ रिसाइकल बिन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रिसाइकल बिन, वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो व्हेन any item is deleted, it actually goes not to the deleted right away। Okay, it is moved to a place on the desktop called recycle bin। तो क्या मतलब होता है कि जब भी आप लोग चीज डिलीट करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर फाइल या फिर कोई भी फोल्डर, तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट नीड आप करते हैं क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो जैसे जस्ट सपोज करो मैंने इस फाइल पे क्लिक किया। ओके, और आप लोग क्या करते हैं, या तो डिलीट का की प्रेस करेंगे या फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके। ओके, राइट क्लिक करके क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे डिलीट को प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अगर आप डिलीट केवल इस तरीके से डिलीट कर रहे हैं तो ये एक्चुअली में डिलीट होता नहीं है, ये क्या करता है, आपके रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है, रिसाइकल बिन इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द ऑल डिलीटेड फाइल। ओके, तो जो भी आप लोगों ने इस तरीके से डिलीट किया है, केवल डिलीट बटन प्रेस करके या फिर राइट क्लिक करके डिलीट करके, तो ये सारे मूव का हो जाते हैं आपकी उस पर्टिकुलर लोकेशन से सीधा रिसाइकल बिन करके फोल्डर होता है उसमें चले जाते हैं। तो आपके डेस्कटॉप पे अगर आप लोग यूज कर रहे हैं विंडोज 7, ठीक है, तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे सॉरी विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे रिसाइकल बिन देख सकते हैं। ठीक है, और विंडो 10 कर रहे हैं तो भी आप लोगों को रिसाइकल बिन का एक फोल्डर दिख जाएगा। ठीक है, सो हियर यू कैन सी द दैट पर्टिकुलर फोल्डर रिसाइकल बिन। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ओके, तो आपको जितनी भी आपने इस तरीके से जो डिलीट की होगी फाइल, वो सारी यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, सो ये देखिए जितनी भी यहाँ पे फाइल डिलीट हुई थी वो सारी यहाँ पे। ओके, सो ये सारी फाइल्स हैं जो भी आप लोगों ने डिलीट की थी। मैं आपको इसमें बता देता हूँ हमारी जो फाइल्स थी डिलीटेड। ओके, सो देखिए ये जो सबसे रिसेंट में मैंने 31, ये देखिए ये जो फाइल डिलीट की थी ये वाली ये फाइल। अगर आपको वापस इसको लेना है तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद में जस्ट रीस्टोर। ओके, तो जैसे ही रिस्टोर करोगे ये फाइल आपकी पर्टिकुलर उस लोकेशन पे आ जाएगी। तो देखिए ये वापस ये फाइल आ गई जो मैंने डिलीट की थी। ठीक है, यहाँ पे 4 फाइल थी, फिर डिलीट करने के बाद में ये 3 इमेजेस रह गई थी, वापस ये 4 हो गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन delete your file, okay, and restore it। okay, so recycle bin is the place where you can find your all deleted file। but होता क्या है कि अगर आप लोगों ने दो मेथड जो कि या तो आपने डिलीट बटन प्रेस करके किया हो या फिर राइट क्लिक करके डिलीट किया हो। ओके, सो यू कैन ओपन द रिसाइकल बिन टू व्यू द डिलीटेड फाइल जो मैंने आपको बता दिया। टू गेट द ऑल डिलीटेड फाइल बैक, डबल क्लिक on the recycle bin icon and the select item and the click to restore this item option। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्या करना है, आपको रिसाइकल बिन में जाना है। कैसे जाना होता है रिसाइकल बिन में, डबल क्लिक करेंगे आप लोग इसके अंदर, ये आपके फोल्डर खुल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइल ढूंढनी है, कौन सी फाइल है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ पे राइट क्लिक करो।
ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद में सॉर्ट में जाओ, सॉर्ट बाय में कर दो हम लोग डेट डिलीटेड, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपकी सॉरी जो आपकी रिसेंट जो फाइल डिलीटेड हुई होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, सबसे ऊपर। ओके, सो आप लोग उस पर डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करके रिस्टोर कर दो तो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगी और कहाँ चली जाएगी, जहां से आप लोगों ने वो फाइल डिलीट की है। ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ रिसाइकल बिन एंड दिस इज द मी ऑफ रिसाइकल बिन। ओके, सो एक बार और देख लेते हैं व्हाट इज गिवन इन कीप इन माइंड। ओके, सो प्रेस शिफ्ट प्लस डी डिलीट to delete a file permanently without sending it to recycle bin। ओके, सो अगर आप लोगों को परमानेंट डिलीट करनी है कोई फाइल, ठीक है, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस करना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट सपोज ये, ठीक है, तो जस्ट सपोज करो कि आप लोगों को ये पिक्चर है जो परमानेंट डिलीट करनी है, तो यू नीड टू प्रेस शिफ्ट की। ओके, तो जैसे आप लोगों ने विंडो वाला की मैंने आपको बताया था, तो शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के साथ साथ में दूसरे फिंगर से आपको क्या करना है, डिलीट बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो ये मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर you want to permanent delete this file। ओके, तो if you are clicking on yes तो ये permanently delete हो जाएगा, और अगर आप लोग no कर रहे हो तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ तो अब ये फाइल कहाँ चली गई, ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। ओके, तो अगर आप लोग इसको रिसाइकल बिन में फाइंड करेंगे तो ये नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है, ये देखिए रिसाइकल बिन में आ गए हम लोग, यहाँ पे वो फाइल नहीं आएगी। ओके, so this is how you can delete your file as a permanent or temporary। Now next, file and folder, so all program and the data are contained in the file, okay, and the computer read and write in those files। Folders provided a method for the organizing file। So what is the meaning of folders? A folder hold one or more file or folders, or it can be empty। So the file and the folder are organized in the hard disk drive of the computer। Okay, so file and folders क्या होते हैं, ठीक है, file and folders तो जो भी आपकी ये सारी फाइल है, इनको फाइल्स बोलते हैं हम लोग, पर्टिकुलर कोई भी आपकी कोई भी फाइल है। ठीक है, so folders क्या होते हैं, तो ये इस तरीके से आपको जो भी दिख रहा है ये सारे क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। ओके, सो एक ड्राइव के अंदर हम लोग जब क्लिक करेंगे, ठीक है, सो ड्राइव के अंदर हम जब क्लिक करते हैं तो ये सारे आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट फाइल को भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, बट हम ऑर्गेनाइज करते हैं पर्टिकुलर फाइल्स को, ठीक है, इन पर्टिकुलर फोल्डर्स के अंदर। तो फाइल क्या कर सकती है, फाइल फोल्डर्स को कंटेन कर सकती है, सॉरी फोल्डर्स क्या कर सकते हैं, फोल्डर फाइल्स को भी कंटेन कर सकते हैं और बहुत सारे फोल्डर्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दिस पीसी के अंदर हम लोग गए, यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे आ गए हम लोग, ये देखिए। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये स्कूल करके एक फोल्डर है, ठीक है, तो स्कूल करके फोल्डर, अब ये फोल्डर क्या कर सकता है, आपकी फाइल्स को भी कंटेन कर सकता है और फोल्डर्स को भी कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो डबल क्लिक करके देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर फोल्डर्स भी डाल रखे हैं और कुछ फाइल्स भी डाल रखी है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर कंप्यूटर फोल्डर्स एंड फाइल। ओके, सो नाउ टास्क बार। So what is the mean of taskbar? So at the bottom of the screen along with the horizontal bar is called a taskbar। It display the start button icon of different running program and the notification area along with the show desktop button। ओके, सो व्हाट इज द मीन ऑफ टास्क बार, जो आप लोग लास्ट में यहाँ पे बॉटम में देख रहे हैं, ये जो सेक्शन होता है ये वाला लास्ट वाला। ओके, सो बॉटम स्क्रीन पे आप लोग ये जो सेक्शन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके सारे ये जो शॉर्ट जो भी आपने फूल या फाइल या फिर फोल्डर ओपन किया है, ये सारे इसके यहाँ पे शॉर्टकट्स बने बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह आपकी आती है, और ये राइट बॉटम कॉर्नर पे एक पर्टिकुलर एक हल्का सा एक छोटा सा बार होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ सकते हो। ओके, यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर बटन और आपके पास क्या हो जाएगा, आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे। ठीक है, वापस क्लिक करोगे तो आप लोग उसी पर्टिकुलर विंडो पे चले जाओगे। ठीक है, अगर आप लोग यूज कर रहे हैं विंडोज 7, सो दिस इज ओके, ये जो आपकी पर्टिकुलर जो बार होती है हॉरिजॉन्टल बार, ये उसको बोलते हैं हम लोग टास्क बार। Okay, so this is the start button, okay, and this is the shortcut of the some
फीचर्स। ओके, तो ये आपका गूगल क्रोम हो जाता है, ये आपके फोल्डर्स एक्सप्लोरर हो जाता है, विंडो एक्सप्लोरर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये सारी चीजें। सो ये पार्ट होता है यहाँ पे, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये विंडो का शॉर्टकट है। सो इफ यू आर क्लिक ऑन दिस बटन, ठीक है, तो आप लोग सीधा कहाँ चले जाओगे, डेस्कटॉप पे चले जाओगे। ओके, सो डेस्कटॉप मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीन ऑफ डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप होता क्या है, तो डेस्कटॉप होता है ये। सो ये दिस इज द फर्स्ट मेन स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर, इट इज नोन एज अ डेस्कटॉप। ओके, सो इस वीडियो में आप लोगों ने अभी तक देखा द सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर विंडोज 7 एंड 10। ओके, सो हम लोगों ने देखा व्हाट इज द मीन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट इज द फर्स्टली सॉफ्टवेयर नीडेड बाय द कंप्यूटर विच हेल्प टू यूजर टू इंटरेक्ट विद द मशीन और कंप्यूटर। ओके, सो ये हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के मशीन और यूजर को। ओके, फिर हम लोगों ने देखे उसके सम इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे कि क्या था, डेस्कटॉप बताया मैंने आपको, कंप्यूटर का फीचर बताया। ओके, विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, फिर हमने देखा रिसाइकल बिन क्या होता है, कि अगर हम लोग कोई भी चीज को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ मूव हो जाती है, रिसाइकल बिन फोल्डर में रिमूव हो जाती है। ओके, सो इफ यू वांट टू डिलीट दैट फाइल परमानेंटली, देन यू नीड टू फॉलो दिस टास्क। ओके, प्रेस द शिफ्ट एंड प्लस डिलीट बटन टू द डिलीट परमानेंटली ऑफ द फाइल। ओके, फिर हमने देखा फाइल एंड फोल्डर्स, तो फाइल एंड फोल्डर्स क्या होता है, देन वी स्टडीड अबाउट द टास्क बार। ओके, so so for the today it's enough for this session. Okay, so in next video we will continue with this chapter. Okay, so till then watch this video again. Okay, if you are have any doubt, so you can ask me, okay, by the message. Till then, stay safe and stay happy, and subscribe this channel also.